Hello everyone. Now in the last class we did the concept of functions, the types of functions, one function, onto function, into function, many to one function, and the bijective function. The bijective function is the function which is one as well as onto. Now today we will do some questions based on the types of functions. The first is, I have written here 4 questions. One by one we will solve these questions. Afterwards we come to next questions. Now question number 1 is f is a function from r star to r star such that fx equals to 1 by x, where this r star is the set of all non-zero real numbers. All non-zero real numbers, that means r minus singleton 0. First of all I am doing the 1 part. 1 part when I am doing. So what I will do, first of all main thing is presentation. स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि हाउ टू प्रेजेंट दीज क्वेश्चंस. मेन प्रॉब्लम ये रिलेशन फंक्शन में प्रेजेंटेशन की आती है, हाउ टू प्रेजेंट द क्वेश्चंस. तो फॉर वन फंक्शन वो सीधे कर देंगे f इक्वल टू f(x1) इक्वल टू, लिखना पड़ता है दैट x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं. तो व्हाट आई विल डू, द प्रेजेंटेशन इज लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू बिलोंगिंग टू द सेट r star domain that is r star. Here domain and codomain both are same in all the questions. Let x1 x2 belongs to r star such that fx1 is equal to fx2. In 1 whenever I need to prove that this is 1 I need to start with this. The presentation wise this is very important. Let x1 x2 belonging to the domain such that x1 and x2 having the same image. Now I will prove that these two elements are same. The definition of 1 which we did in the last class. Now fx1 is equal to fx2 implies fx is 1 by x, so fx1 will be 1 by x1 is equal to 1 by x2, and cross multiplication will give me x2 equals to x1 implies x1 equals to x2. So we can say that this is a 1 function. This is a 1 function. This is a 1 function. This function is 1 function. Now I am doing the onto part. फिर से वही मेन बात, प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट. ऑन्टो में क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन छोड़ दो, ऑन्टो बारे में बताते हैं. ऑन्टो में करते क्या है, लेट फंक्शन ऐसे भी होता है, मान लो सपोज फंक्शन, अभी ये इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑन्टो में करते क्या उसकी बात करता हूं. लेट एक एलिमेंट लेंगे y बिलोंगिंग टू द कोडोमेन. लेट y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, दिस इज a, दिस इज b. लेट y बिलोंगिंग टू द कोडोमेन, this is a and this is b. I will take an element from b. Let y belongs to b. What I will do, I will prove that this y has, every y in b has pre-image in a. For that we need to prove let y belongs to b such that fx equal to y. मैंने ये मान लिया कि y belongs to b मान लिया जिसमें x की इमेज y है, मतलब हर एक y के लिए मेरे पास प्री इमेज x है. प्रूफ सिर्फ ये करना पड़ेगा कि ये जो x जो इसकी प्री इमेज है वो x r डोमेन से ही रहा है, मतलब वो x r a से ही रहा है, x बिलोंग्स टू a. ऐसा करने से क्या हो गया, मैंने कोई भी एलिमेंट v कर लिया, उसकी प्री इमेज आई और वो कहां से आई, a से आई. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ onto codomain equal to range. So this is the thing, this is the presentation wise which we need to do in onto. Now I am doing in this question the same thing. So what I will do, I will write that let y belonging to the codomain is r star. Let y belonging to the codomain, that is r star, such that fx equal to y. Fx equals to y. Now what is fx? Fx is 1 by x. 1 by x equal to y. अब ऑन्टो वाले स्टेप में ये काम करने पड़ेगा. यहाँ पर खैर आसान है करना, और क्वेश्चन में कुछ और करना होगा. क्या दैट यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x है, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x है. हमें x का पता करना है कि x प्रूव करना है, यहाँ से आ रहा है. तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट दैट मींस राइट नाउ इट इज y इन टर्म्स ऑफ x, वी हैव टू डू x इन टर्म्स ऑफ y. यहाँ पर आसानी से हो रहा है क्या, दैट x इक्वल्स टू 1 बाय y. अब x इक्वल्स टू 1 बाय y का मतलब क्या हो गया, मुझे x कहाँ से आ रहा है. देखो अब y कोई भी रियल नंबर होगा, y क्या है, y यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ लिखूंगा implies x belongs to r star as y कहाँ से आ रहा है, r star से आ रहा है. जब y r star से आ रहा है मतलब y can't be 0. भाई x कब डिफाइन नहीं हुआ यहाँ पर, जब y 0 होगा, और y 0 हो नहीं सकता. क्यों, बिकॉज y is coming from r star and r star में 0 है ही नहीं एलिमेंट. सो आई विल से
x बिलोंग्स टू r स्टार आ रहा है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू r स्टार लेके चला जिसकी प्री इमेज x थी, और इस ये जो x आ रहा है डोमेन से आ रहा है, r स्टार से आ रहा है, सो वी कैन से दैट दिस इज ऑनटो आल्सो, दिस इज ऑनटो, सो आई कैन से दैट दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, this is 1 1 as well as onto, we can say that this is bijective function, this function is bijective function. This was about this question. Now I am coming to question number 2. Now one more thing, this same question what I am doing, in this same question what I am doing, I am replacing the domain, I am replacing this domain by natural number, that means fn to r star कर दिया क्वेश्चन, r star क्या है, r माइनस सिंगलटन 0 और r star क्या है n, fn to r star कर दिया मैंने, तब क्या रिजल्ट बनेगा वो चेक करते हैं। सबसे पहले 1 1 पे आएंगे, तो 1 1 में कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 1 वही होगा जैसे हम करते हैं x1, x2 बिलोंगिंग टू n लेंगे such that fx1 equals to fx2, that means 1 upon x1 equal to 1 upon x2 implies x1 equal to x2, so this is 1 1 function। ये 1 1 ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, पूरा लिखना है 1 1। When I will come at onto, पहले onto का यहाँ पता लगा, देखो चलो करते हैं, वैसे सबने किया वैसे ही करते हैं, समझ लो क्या किया, let y belong to the codomain r star such that fx equal to y, मैंने ऐसा किया, अब fx क्या हो गया 1 by x is equal to y, that means जो x है वो बन गया 1 by y, x क्या बन गया 1 by y, अगर x 1 by y बन गया इसका मतलब यहां से अब ये जो y है y कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, तो x डिफाइंड तो होगा, लेकिन इफ अगर y जो है वो 3 हो गया तो x बन गया 1 by 3, इफ y is 3 तो x क्या बन गया 1 by 3, 1 by 3 is not a natural number, और जबकि नंबर ये जो आना चाहिए x कहां से आना चाहिए नेचुरल नंबर से, इसका मतलब इंप्लाइज x does not belong to natural number। अब यहाँ पे अल्टीमेटली हमने किया क्या, जब ये ऑनटो नहीं है, दिस इज नॉट ऑनटो, तो हमने अल्टीमेटली किया क्या, हमने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल ही तो है, दैट मींस अगर प्रूव करना है वही रिलेशन वाला केस, प्रूव करना है तो जनरल प्रूव करेंगे, और अगर नहीं है तो वी हैव टू गिव द एग्जांपल। दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन for describing when the function is not onto, not 1 1, what we have to do, we have to give the example. When it is 1 1 and onto, then we have to prove general without taking the example. Example will be taken only in the case when this is not onto, not 1 1। So this was question number 1। Now I am coming to question number 2, that is यहाँ पर तीन फंक्शन कर दिए मैंने, तीन डिफरेंट, नेचुरल, इंटीजर, रियल नंबर, फंक्शन सेम है सबके लिए, fx equal to x square। 1 by 1 करते हैं, पहले पता ही लगा देते हैं। देखो एक जनरल सा आइडिया है, 0 की इमेज जाएगी 0 पर, यहां से -1 जाएगा 1 के पास, 1 भी जाएगा 1 के पास, एलिमेंट और भी है, एलिमेंट और भी होंगे, 2 -2 वो जाएगा 4 के पास, 2 भी जाएगा 4 के पास, एलिमेंट और भी होंगे, मोर एलिमेंट्स आर देयर। तो फिलहाल यहां मुझे दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है अगर इफ द डोमेन इज रियल नंबर, इफ द डोमेन इज हैविंग नेगेटिव नंबर्स, अगर डोमेन में नेगेटिव नंबर होंगे देन दिस फंक्शन विल नॉट बी 1 1 फंक्शन। दैट मींस किस केस में, ये छोड़ दो z और r के केस में, मतलब इन केस ऑफ f z to z, इन केस ऑफ f r to r, इन दोनों केसेस में, इन बोथ दीज केसेस दिस फंक्शन f इज नॉट 1 1। अब नॉट 1 1 में क्या एग्जांपल दे देंगे, दैट f -2 इज इक्वल टू f2 विच इज 4, f -2 क्या होगा 4, f2 के भी क्या होगा 4, -2 और 2 की इमेज सेम है बट -2 नॉट इक्वल टू 2, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। अब ये फंक्शन इन दोनों केस में 1 1 नहीं है तो एग्जांपल देना पड़ेगा, ये रहा एग्जांपल आपके सामने। अगर इन्हीं दोनों केस में हम ऑन्टो की बात करते हैं, अच्छा ऑन्टो की बात तीनों में कर देंगे एक साथ, ये हो गया। अब अभी फिलहाल छोड़ दो, सेट के बारे में छोड़ दो, अब थ्री डिफरेंट सेट्स हैं, चलो पहले मैं ऑन्टो की बात करता हूं। अच्छा पहले 1 1 की बात करते हैं, किस केस में 1 1 की बात करते हैं, सेम 1 1 की बात करते हैं, थर्ड केस क्या है, f नेचुरल से नेचुरल, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको एग्जांपल में दिया था, f नेचुरल से नेचुरल की बात करेंगे तो यहां पर जब नेगेटिव नंबर आएंगे, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 1 की इमेज 1, तो यहां पर एक की इमेज एक है, मतलब पता लग रहा है कि ये 1 1 है, लेकिन एग्जांपल नहीं देना, प्रूव करना है। तो वही सिंपल सा फंडा जो हमने कल किया था, ये इसका एग्जांपल मैंने कल किया था कि x1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा अगर fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे तो,
x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 प्लस x2 कैन नॉट बी 0, दिस कैन नॉट बी 0। Why? Because x1 and x2 are what? x1 and x2 are from domain. x1, x2 belongs to natural number. लेना ही है हमेशा, स्टार्टिंग इससे करनी है। x1 x2 belongs to the domain, स्टार्टिंग उससे करनी है। x1 x2 belongs to natural number, fx1 इक्वल टू fx2, ये आ गया पूरा कंप्लीट। ये नॉन जीरो है, इसका मतलब x1 माइनस x2 जीरो है, इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो इन तीनों फंक्शन के केस में मैंने 1 1 की बात कर दी, इस केस में 1 1 है। इन दीज टू केसेस दिस इज नॉट 1 1, द रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू। इन दीज टू केसेस आई हैव गिवन द एग्जांपल, इन दिस केस आई हैव प्रूव्ड इट जनरल। नाउ द onto part, now the onto part I am doing in the same question, I am doing the onto part, and the onto part is, what is onto part? Let suppose I am doing this first part, let y belong to natural number, let y belong to codomain, this is codomain, natural number such that fx equal to y. I am talking for f natural to natural, the same function fx equal to x square, fx equals to y. Then now what is fx? Fx is x square, तो x square equals to y. If x square equal to y, इसका मतलब x equals to क्या हो गया, प्लस माइनस रूट y. Now अब y के बारे में पता कर लेते हैं। If y is equal to 2, तो x equal to प्लस माइनस रूट 2, एक प्लस माइनस रूट 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। And this does not belongs to the natural number, इसका मतलब this function is not onto function, this function is not onto function, the given function is not onto function. So now in this case and in this case also, f n to n f z to z में चल जाएगा, ये सेम एग्जांपल चल जाएगा z to z में भी। क्यों, हम क्या चेंज कर देंगे, यहां पर z कर दिया, और जब y x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आएगा, ये दिस डज नॉट बिलोंग्स टू z, इसका मतलब इन दोनों केस में ये नॉट ऑनटो, दिस इज नॉट ऑनटो। इन केस ऑफ n, इन केस ऑफ z, दिस इज नॉट ऑनटो। दिस इज द एग्जांपल आपके सामने है। बट इन केस ऑफ r to r, सेम एग्जांपल लिया सपोज करो मैंने, सब एग्जांपल लेने पर ये हो गया। बट अगर मुझे एक भी एग्जांपल ऐसा मिल गया जिसमें प्री इमेज मिल गई, नहीं मिली, तो फंक्शन ऑन तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल नाउ आई एम टेकिंग फॉर f r to r, ये सारा काम मैंने किया। क्या सारा काम किया, लेट y belong to r, the codomain, such that fx equal to y, such that fx equals to y, then I will write x square equal to y, इसका मतलब x equals to plus minus root y. Now if देखो y is coming from real number, तो y can be negative as well, y is coming from real number, that means y can be negative as well. If y equals to minus 2, then x will be equal to plus minus root of minus 2, which is not real, which is not real. That means we can say that this function is again not onto, this function is again not onto, this function is not onto, not onto function this is. So this is into function, जो function onto नहीं है वो into function है। The example we have given in this case, in this case, इन दोनों में same example work कर गया इन दोनों केस में, but in this case we have to give the example in which the element don't have pre-image. So if I am taking minus 2, any negative real number, that will not give me the pre-image in its domain, so this function is not onto, all the three. Now I am coming to the next example, that is, I am coming to the next example, that is the third, fx equals to mod x, f r to r, fx equal to mod x। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल। अगर कोई चीज नहीं है तो उसमें सीधे एग्जांपल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी विल प्रूव इट जनरल। तो अगर यहाँ पर -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, -2 है, यहाँ पर भी -2, -1, 0, 1, 2 सब आएगा, तो 0 will go to 0, 0 will map to 0 via f, then 1 will map to 1, -1 to 1, 2 to 2, -2 to 2, that means this is not 1 1, modulus function is not 1 1, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर, that this is not 1 1। और यहाँ पर एक बात और दिख रही है, बिल्कुल क्लियर क्या दिख रहा है कि भाई ये जो नेगेटिव रियल नंबर इन कोडोमेन है, नेगेटिव रियल नंबर इन कोडोमेन डोंट हैव प्री इमेज इन इट्स डोमेन, सो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। करना कैसे है, नहीं है तो दोनों में एग्जांपल देना है। क्या देना है, दे दो। सबसे पहले आ गया 1 1, तो 1 1 में क्या करेंगे, f
-1 is equal to f1 but -1 not equal to 1, therefore f is not 1 function. When I will talk of onto, तो अब कोई f is equal to y मत पुट करना, क्यों? जब पता लग गया नहीं है onto, तो सीधे we will give the example, and the example is -1 belongs to R, don't have -1 belongs to R, don't have pre-image in its domain. सिर्फ एक एग्जांपल दे दो, लिख तो और भी सकते हो या फिर हम सीधे लिख देंगे all negative real numbers don't have pre-image in its domain, therefore the function is not onto. मॉडुलस फंक्शन को बताइए क्या होता है मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज mod x is equal to plus x if x is more than equal to 0, minus x if x is less than 0. So this was about modulus function. Now I am coming to the next portion, that is greatest integer function x. F from real to real, fx equals to greatest integer function x. So we will start now. First of all, what is greatest integer function? सबको पता है that this is, if we need to find the value of 4.1, this will be 4, 4.9 will be 4, 4.9999 will be 4. We have studied this in class 11. What is greatest integer function? Greatest integer, that means suppose 4 and 5. All the numbers between 4 and 5 will give me the value as 4. The previous integer. But if we have to find the greater integer of an integer, then it will be the same integer. Suppose negative की बात करते हैं, this is 0, this is -1, this is -2. If the number is -1.1, then the answer will be -2. -1.1 greatest integer will be -2. The previous integer. 4.9 का 4, तो -1.1 का -2, the previous integer. If the number is integer -2, so the answer will be -2. This is the greatest integer function, which we have studied in class 11th as well. Now the one-oneness and onto-ness of this function will be described by, first of all, the one-one केस में बिल्कुल क्लियर है, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल है. दैट मीन्स वी कैन से दैट if this is 1.2 and 1.7, तो 1.2 की इमेज will be 1 and 1.7 की इमेज will also be 1. So we can say that f1.2 is equal to f1.7, but 1.2 not equal to 1.7. But 1.2 not equal to 1.7, therefore it is not 1. It is not 1 function onto. क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1.1 भी होगा, 1.2, बहुत सारे नंबर बीच में होंगे इसके, उन सभी कोई प्री इमेज नहीं है. तो वी कैन से all non-integers in codomain ब्रैकेट में R don't have pre-image in its domain. Therefore f is not onto. Function is not 1, function is not onto. So this was the example for greatest integer function. Now suppose I am doing f from R to Z. मैंने ये कर दिया इस क्वेश्चन में, फंक्शन सेम. आप चेक कर लो, फंक्शन फ्रॉम R to Z अगर बन गया तो सिंपल सी बात है, ये 1 होगा. 1.2 का भी 1 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डोमेन में तो 1.2 1.7 है, तो सेम एग्जाम्पल वर्क कर जाएगा. नॉट 1, क्योंकि डोमेन में तो 1.2 1.7 होगा ही, और उनकी इमेज भी सेम हो जाएगी 1, जो कि इसमें भी होगा. दैट मीन्स इट इज नॉट 1 इन दिस केस, अगर मैंने इसको चेंज. लेकिन ऑन टू, अगर डोमेन में सारे हैं ही 1 2, तो इन सबकी प्रीमेज तो होगी प्रीमेज, सबकी प्रीमेज होगी. ठीक है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू. इस केस में ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा.
अगर यहाँ पर z हो जाएगा तो, क्योंकि हर रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे, इसका सिंपल सी बात है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इसका रेंज क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? रेंज ऑफ दिस इज z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां पर मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो रेंज है दैट रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर f इज ऑनटो। तो अगर फंक्शन को ऐसे कर दिया है, अगर ये है तो 1 1 में नहीं है, ऑनटो में नहीं है, और अगर इस तरीके से है देन द फंक्शन इज नॉट 1 1, द सेम रीजन, बट दिस इज ऑनटो। This was all about 4 examples. We will do some more examples. This was the basic examples to understand the concept of function and its types. Now we will do more examples in the next video. Okay, thank you.